Good evening, students. Welcome to the session. In this session, we are going to discuss few questions on the unit magnetic field, and the first three questions will be based on the graphical representation of magnetic field. This question I have also discussed in the class, but if anyone having doubt, then he or she can watch this video carefully. So I hope if they will watch the video carefully, then definitely they will get the benefit, and their doubts will be more clear. So this is my contact number. If you have any doubts after the class, still after the class, then you can contact on this number. And this video is this content is supported by Mr. Sushil as well as myself, Jaskirat. And the topic, basically I decided with the topic that force on current carrying conductor placed in magnetic field. But after that I realized that when I was going through the PDF, so then I realized that there are some topics which can be like a graphical representation. So this is an important question for NEET exam as well as JEE mains exam. So you can expect such type of questions. So let's just start with the first question. Two parallel wires at a distance 2d apart. So there are two parallel wires which are placed, the distance between them is 2d. So they carry current, steady current. Steady means constant, equal current. This is the important point, steady and equal current. Steady तो बच्चे almost in every question you will see current will be steady, but equal current is very important point and flowing out of the plane of paper. So what is happening here? There is a conductor like this one. There is a conductor like this one. If I draw again, this is a conductor. This is actually this conductor cannot be shown on the figure because it is vertically inward. The conductor is just like vertically inward. That's why it is represented by, here we can see it is represented by dot. And dot means the current is flowing. Here read, the current is flowing out of the plane of paper. So current is flowing out of this screen. So current is flowing in which direction? Current is flowing in this direction. That means current is flowing outward. Conductor is like this one. This is the conductor. This is the conductor, and the current is in this direction. Current is in outward direction. So dot means current is in outward direction. Now students, important things are how to represent the variation of magnetic field and graphical representation. That means from where we can start the graph, from positive y-axis or from positive x-axis. So we have to think that things. Students, one thing you have to remember, if the magnetic field is in upward direction, then we have to start the graph from positive y-axis. And if the magnetic field is in downward direction, suppose at this point magnetic field is in downward direction, then we have to start the graph from negative y-axis. Why this graph is we will draw this graph? Because at this point the distance r is very small. So that means magnetic field at this point will be very large as compared to this point. As the distance from the conductor increases, as this distance increases, this r is more. So as the distance increases, then the magnetic field will decrease. So I will use a small marker for it. मैं थोड़ा small marker use करूँगा because with the larger, wider marker I am unable to write r properly. So what is happening? See here, current is flowing, conductor is this one. Let's suppose this is the conductor. So current is flowing. Now current is flowing in outward direction. So this is ideal vector. बच्चे मैं आपको हर पॉइंट पे बताऊंगा, ठीक है. दिस इज आइडियल वेक्टर एंड वेयर इज आर वेक्टर? सी, दिस इज आर वेक्टर because if I have to find magnetic field at this point, then my ideal vector is blue one, and this is my r vector.
सो इफ़ आई क्रॉस आइडियल क्रॉस आर, मतलब मैंने क्या करना है, आइडियल वेक्टर को आर वेक्टर के साथ क्रॉस करना है, देन आई विल गेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज गिवन बाय विच लॉ, दिस इज गिवन बाय विच लॉ, कमेंट बॉक्स में बच्चे जरूर बताना, ठीक है, किस साइंटिस्ट ने हमें इस लॉ के बारे में बताया, डायरेक्शन किसने, इस मेथड से हम डायरेक्शन जो फाइंड कर रहे हैं, दिस इज़ गिवन बाय विच साइंटिस्ट, दिस यू हैव टू ड्रॉप, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, ठीक है। सो दिस इज़ आइडियल, दिस इज़ माई आइडियल वेक्टर, आइडियल वेक्टर वाई इट इज़ आउटवर्ड, बिकॉज करंट इज फ्लोइंग in out of the plane of paper, and this is my r vector. So that means now बच्चे I will draw with paint app, मैं paint app के साथ यूज़ करूँगा। that means magnetic field direction, magnetic field direction towards left of this conductor, towards the left of this conductor is downward। बच्चे आइडियल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर करके देखोगे, then it will be downward. You can try at your own end, you can try at your own end, आप अपने एंड पे ट्राई कर लो, ठीक है। You will definitely see that magnetic field will be downward. So it is the direction of B. I am writing here, this is B. So this is the direction of B. I hope it is clear, I hope it is clear. Okay, brush normal, okay, new brush, pen, okay, okay. So this is the direction of B, so this is the direction of B here, this is the direction, and this is B. B means magnetic field at this point. Now I am raising this one, you can get magnetic field direction at this point, इस point पे towards the left of conductor the magnetic field is in downward direction. I hope it is clear, so I am raising it now. Now see this one, if I draw, this is ideal vector, this is ideal, and this is my r vector. So this is my ideal vector, I am repeating it again, this is my ideal vector, and this is my r vector. So if I cross ideal cross r, if I cross ideal vector with r vector, then you can easily see, then the magnetic field at this point, at this point, or at this point, due to this conductor will be upward direction, will be in the upward direction. So I hope you can easily see, if I cross ideal vector cross r, if you will close your fingers, if you will close your fingers from this direction towards this direction, then your thumb will give the direction of magnetic field and it will be upward direction. So I hope it is clear. So for this case, if you will observe the magnetic field, then magnetic field at this particular point is, at this particular point, due to the left hand side conductor, due to this conductor is in the upward direction. Then we have to move to next portion. In the next portion, you can observe here that the magnetic field, the current carrying is element is this one, ideal, यहाँ पे आएगा बच्चे ideal cross r. So ideal cross r, if I will cross it, it is my ideal vector and this is my r vector. If I will do ideal cross r vector, then my magnetic field will be in the downward direction.
So then my magnetic field due to this conductor, I am repeating, due to this conductor at any point here, here, or you can say here, due to this conductor, I am repeating, due to this conductor only, the magnetic field is in the downward direction like this one. Let me erase the extra dots. So due to this conductor, the magnetic field at any point towards the left direction is downward. So I hope it is clear. Now we are left with one position which is towards the right of this conductor. So this is my r vector. Let's suppose this is r vector, and this one is obviously ideal vector. This is I into dl vector. So if I will do ideal cross r, मुझे ideal cross r करो. If you will do ideal vector cross r vector, this one, then your magnetic field will be in the upward direction. So magnetic field will be in the upward direction. So I hope it is clear. So what will happen in this case? Magnetic field will be in the upward direction. So that means this will be my magnetic field in the upward direction. So now students, now I am going to plot the graphical representation. Now see carefully, because it is important one. Now magnetic field is obviously, if you can observe, at this point magnetic field is more, at this point magnetic field is more, at this point magnetic field is going to decrease as this distance is increasing. As this distance is increasing, magnetic field is obviously decreasing, because Bird's-Sauer law states that magnetic field is inversely proportional to the distance between the conductor and the point where we have to find the magnetic field. So that means for this case, the magnetic field, this is the maximum value of magnetic field. So from the maximum value, magnetic field will decrease gradually in this direction. Why I am starting this graph from the negative y-axis? Why I am starting this graph from the below one? Because magnetic field direction is downward. When the magnetic field direction is downward, then I have to start my graph from the down position. Now see the next one. Now this is upward, so my magnetic field will be maximum at this point, because here distance is very small. So that means this graph will start from maximum position and to the minimum position. Now see, one magnetic field at this distance d, one magnetic field will be upward, one will be downward. These two are equal in magnitude but opposite in direction. These two magnetic fields are equal in the direction, equal in the magnitude but opposite in the direction. So that means here will be the 0 point. बच्चे 0 point बहुत जरूरी है. If the current is same, if the current flowing through two conductors is same, then the 0 point can be in between. If the magnetic fields are opposite, अगर magnetic field opposite होंगे, in that case जो 0 point है वो आपको मिल जाएगा. और 0 point कहाँ पे मिलेगा? 0 point मिल सकता है एट द सेंटर, बट दिस इज़ नॉट कंपल्शन. ये कंपल्शन नहीं है. कुछ केसेस होंगे जहाँ पे 0 point आपको नहीं भी मिलेगा. सो इन दिस केस magnetic field is downward, so graph will start from here and it will meet like this one. So this is the graphical representation. Almost question is completed. One thing is left, let's discuss that one also. So ये सेंटर का ग्राफ क्लियर हो गया. This is my 0 point. This is my 0 point where the magnetic field is 0, and now we are left with the right one portion. So इस साइड पे ड्यू टू दिस कंडक्टर एट एनी पॉइंट टूवर्ड्स राइट magnetic field is upward. So what will be the direction? So this will be the graphical representation. This will be the graphical representation for magnetic field. And this is a complete explanation of this question. And if anyone having still doubt in this question, then you can drop a message to me. Then you can now you can take the screenshot. एक बार बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो.
आई विल एक्सप्लेन वन मोर क्वेश्चन एंड वन विल बी इन द होमवर्क। एक और क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करूँगा, सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। You can take the screenshot. Wait. So this is the all about this question, and graphical representation is now complete. You can take the screenshot. अगर आप screenshot अभी लेना चाहते हो then you can take the screenshot. I am going to raise this one. Okay, now I am raising it. If you have any doubts then you can comment. Now we are on the second question. In the second question we have to draw the graphical representation. हमें graphical representation ही करनी है. So in this question let's see what will happen. And firstly take this question, थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं इसको. Okay. Okay, I think now screen question is visible on the screen, completely visible. Yes. So what will happen in this case? Firstly, current is outward from this point. Current is outward from this point, but here current is inward. Here current is inward. तो ध्यान से समझो बच्चे, current is inward in this conductor. इस कंडक्टर में करंट इनवर्ड फ्लो कर रहा है. इन दिस कंडक्टर करंट इज फ्लोइंग आउटवर्ड. सो लेट्स ड्रॉ द फर्स्ट आर वेक्टर. तो यहाँ पे आर वेक्टर को ड्रॉ करते हैं. दिस इज माई आर वेक्टर. सो इफ़ आई विल क्रॉस आइडियल क्रॉस आर देन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेक करो. इफ़ आई विल डू आइडियल क्रॉस आर माई मैग्नेटिक फील्ड विल बी डाउनवर्ड. सो माई मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. लेट्स ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड. So this is the direction of magnetic field towards the left of this conductor. Towards the left कोई भी point हो सकता है. ये this can be, this can be, this can be also. इस किसी भी point पे the direction of magnetic field towards the left of this conductor is downward. अब एक और वेक्टर ले लेते हैं. चलो, this is my r vector towards the right. Okay, let me take marker. Color change. So this is my r vector towards the right of this conductor. So if I cross ideal cross r now, then magnetic field will be, this is ideal. So if I will do ideal cross r, then at this point, at this point, at this point, इस right side पे इस conductor के कोई भी point हो, magnetic field will be vertically upward. Then I am going to raise this one now. But I am repeating one thing. If it is the ideal vector किस तरफ है? देखो बाहर की तरफ. Ideal vector is in which direction? Ideal vector is in outward direction. If I will do ideal cross r, अगर मैं ideal vector के साथ r vector को क्रॉस करूँगा, then my magnetic field will be downward. And if I will do ideal cross r on this side, then it will be upward. So magnetic field direction is upward. So I hope these two things are clear. This is the direction of magnetic field, and this is also a direction of magnetic field due to this conductor only. Due to this conductor only, in which current is flowing in this direction, inward to the paper. Sorry, in this case current is flowing outward to the paper because it is dot. So dot. We have done the calculations as per dot. I have just said coincidentally. So this is all about the conductor. ठीक है. So this is all about the conductor 1. ये जो लेफ्ट साइड वाला करंट कंडक्टर था जिसमें करंट बाहर की तरफ फ्लो कर रहा था. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस वन. दिस इज माय आइडियल वेक्टर. आइडियल वेक्टर अंदर की तरफ ले लिया. ठीक है. थोड़ा क्वेश्चन हम जल्दी कर रहे हैं क्योंकि इस टाइप से टाइम बहुत कंज्यूम हो जाएगा. सो दिस इज माय आइडियल वेक्टर. बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे इन क्वेश्चन के ऊपर. सो दिस इज माई आइडियल एंड दिस इज आर वेक्टर. So ideal cross r करो बच्चे. If you will cross the fingers from ideal vector to r vector, then you can observe at this point magnetic field is downward. Obviously check करना एक बार. Close your fingers. You can easily observe that magnetic field at this point is downward, in the downward direction. Obviously check करना बच्चे.
close your fingers from the direction of ideal. Ideal is inward. If you will close your fingers from ideal vector to r vector, then magnetic field direction will be downward. So this second conductor, towards the right of this second conductor, the magnetic field is in the downward direction. Now let's take one more vector here. Towards the left of this conductor, ideal cross r. अच्छा बच्चे ideal cross r करो. If you will cross your fingers, ideal vector cross r vector, then magnetic field direction at this point, magnetic field direction is at this point is किस तरह की मिलेगी? Magnetic field direction will be upward. So if you will close your fingers from ideal, ideal vector अंदर की तरफ है. Close your fingers from ideal vector, ideal vector से r vector की तरफ. This is r vector. So r vector कहीं पे भी हो सकता है. So r vector की तरफ fingers close करोगे, then it will be upward. So this is all about the concept कि आपने magnetic field की direction देखनी है. अब यहाँ पे देखो दोनों मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, दैट मीन्स 0 पॉइंट तो नहीं मिलेगा, है ना. 0 पॉइंट कब मिलेगा? 0 पॉइंट वी विल गेट व्हेन द टू वेक्टर्स आर गिविंग मी द मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू 0. चलो सब कुछ क्लियर करते हैं. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वगैरह अगर आपको क्लियर हो गई है, देन वी कैन ड्रॉ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम ड्रॉ कर लेते हैं. इफ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इज क्लियर, सी दिस वन, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में है. दैट मीन्स वी विल स्टार्ट ऑब्वियसली फ्रॉम दिस पॉइंट. सो इन दिस वे. अच्छा कलर चेंज कर लें थोड़ा सा. लेट मी चेंज द कलर ऑफ दिस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. लेट मी टेक डार्क रेड. ओके, दिस इज डार्क रेड एंड मैग्नेटिक फील्ड विल स्टार्ट इन दिस वे and gradually it will decrease. So this is the left side of this conductor. तो इस कंडक्टर के लेफ्ट साइड पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चेंज होगा. आई होप दिस इज क्लियर. देन ऑन दिस साइड, इस कंडक्टर के राइट साइड पे मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है. दैट मीन्स यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से चेंज होगा. सो इन दिस वे मैग्नेटिक फील्ड विल चेंज नियर दिस कंडक्टर. इस कंडक्टर के टू द राइट ऑफ दिस कंडक्टर. नियर नहीं बोलेंगे बच्चे, टू द राइट ऑफ दिस कंडक्टर. सो इस कंडक्टर के राइट साइड पे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा. देन हेयर मैग्नेटिक फील्ड विल बी मैक्सिमम. तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम ले लिया और नीचे की तरफ डिक्रीज होगा. अब विद द डिस्टेंस इट विल ग्रेजुअली डिक्रीज. एट दिस पॉइंट, जहाँ पे पहले 0 पॉइंट था, इस टाइम क्या होगा? इस टाइम पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मिनिमम हो गया. बिकॉज इस तरफ से भी डिस्टेंस डी है, इस तरफ से भी डिस्टेंस डी है, तो हमने इस पॉइंट पे मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड मान लिया. देन वी कैन कंटिन्यू इन दिस वे. सो इस तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको ड्रॉ करनी आ सकती है. बट वी कैन नॉट एक्सपेक्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विल कम इन CBSE के पेपर में नहीं मिलेगी. ऑब्वियसली मैंने आपको पहले भी बताया था. सो CBSE के पेपर में नहीं मिलेगी. हाँ, नीट के पेपर में मिलेगी, JEE के पेपर में मिलेगी, और बहुत से पेपर हो सकते हैं जिनमें मिल जाए. ठीक है, NDA वगैरह के पेपर हो सकते हैं, एयरफोर्स वगैरह के पेपर हो सकते हैं +2 के बेस पे. वहाँ पे आपको ऑब्वियसली दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू विल डेफिनेटली फाउंड. तो दिस इज़ द ऑल अबाउट द क्वेश्चन. ठीक है, 2 क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं. एक क्वेश्चन मैं आपको चाहूँगा कि आप खुद करें. ठीक है, दिस इज़ द सेकेंड क्वेश्चन. दिस इज ऑल द क्वेश्चन नंबर 2. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2. यू कैन नोट डाउन द सोल्यूशन समझ लो, फिर नोट डाउन कर लो. नाउ टेक द स्क्रीनशॉट. जल्दी से स्क्रीनशॉट भी ले लो. ठीक है, अगर प्रॉब्लम नहीं है कोई समझने में, और नोट डाउन कर लो किसी कॉपी में. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2. थर्ड वन, फोर्थ वन, ओके, फिफ्थ वन, सिक्स्थ वन, ओके, सिक्स्थ वन, सेवन्थ वन. ठीक है बच्चे, तो लेट्स स्टार्ट द थर्ड वन. थर्ड वन की भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर ही लेते हैं. विद इन फ्यू मिनट्स हम जल्दी से कर लेंगे, है ना. ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब करेंगे इसके ऊपर, जल्दी से. सो मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड, जल्दी से बना लें. सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड नहीं, यहाँ पे आइडियल वेक्टर इज इनवर्ड. सो आइडियल वेक्टर इज इनवर्ड. ओके, गुड. सो दिस इज पॉइंट
आर वेक्टर इस तरफ होगा. इफ़ यू विल क्रॉस योर फिंगर्स आइडियल क्रॉस आर, इफ़ यू विल क्रॉस योर फिंगर्स फ्रॉम आइडियल वेक्टर टूवर्ड्स आर वेक्टर, देन मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कौन सी मिलेगी बच्चे? यू विल डेफिनेटली सी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन विल बी ideal cross r vector. This is I r vector. So magnetic field ideal cross r vector, this is ideal cross r vector. Magnetic field will be upward direction, ideal cross r, so magnetic field will be in the upward direction towards the left of this conductor. Now see this one, this is my r vector. So अब करो ideal cross r. If you will close your fingers in this direction from ideal cross r, then the magnetic field at this particular point will be towards the right of this conductor. Towards the right of this conductor, due to this conductor towards its right, the magnetic field is downward. So this is the direction of magnetic field. Now see for the second conductor. This is all about the first conductor. So we have discussed that. Now for the second conductor also the magnetic the current ideal vector is inward. So ideal vector is my ideal vector is inward. So ideal vector is inward, then at this point this is my r vector, this is my r vector, this is my r vector, and this is ideal vector. So what will happen in this case? Ideal cross r. If I cross my fingers from ideal cross r, then my magnetic field direction will be, my magnetic field direction towards the left of this conductor, towards the left of this conductor is upward. Ideal cross r. Close your fingers in the direction of r from ideal vector. It is upward. Now see one more direction. This is my okay, wait, this is my r vector, this is my r vector. So ideal cross r, अगर मैं यहाँ से fingers close करूँगा, if I will close my fingers from ideal vector dot r, then my magnetic field direction will be downward in this direction. सो ये जो डायरेक्शन है बच्चे, ये आपको बर्ड-सावर्ट लॉ से देखनी है. बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर में किस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, आइडियल वेक्टर, और आइडियल वेक्टर को उस पॉइंट के साथ क्रॉस करना है. तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये डायरेक्शन आपको चेक करनी आनी चाहिए, तभी ओनली देन यू कैन ड्रॉ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तभी आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ आएगी. और उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बेसिकली है क्या था, इन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इफ़ द मैग्नेटिक फील्ड इज अपवर्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड आता है देन आपको पॉजिटिव वाई एक्सिस से स्टार्ट करना है इन दिस वे. अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज़ डाउनवर्ड, देन आपको नीचे से स्टार्ट करना है. तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी. आफ्टर दैट वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. सो सी द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नाउ. दिस इज अपवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड था, तो क्या होगा, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे. इन दिस डायरेक्शन वी विल डिक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड. तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड हम बनाएंगे. दिस विल बी द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. देन यहाँ से देखो मैग्नेटिक फील्ड नीचे से मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, सो दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन दिस वे, इस तरह से डिक्रीज होगा. एंड एट दिस पॉइंट इज ये 0 पॉइंट बन सकता है, बिकॉज वन वेक्टर इज डाउनवर्ड, वन वेक्टर इज अपवर्ड. एक वेक्टर ऊपर की तरफ है, एक वेक्टर नीचे की तरफ है, तो ये 0 पॉइंट ऑब्वियसली बन सकता है. सो दिस विल बी द 0 पॉइंट. तो ये 0 पॉइंट बन गया है ना, दिस इज माई 0 पॉइंट. देन इट विल बी लाइक दिस वन. तो ये इस तरह से अब चला जाएगा, बिकॉज नाउ इट इज़ फ्रॉम द पॉजिटिव वाई एक्सिस. तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गई बच्चे. दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दीज टू कंडक्टर्स. एंड नाउ वी आर लेफ्ट विद वन पोर्शन, इस पोर्शन से बचे हैं. एंड द डायरेक्शन इज नाउ डाउनवर्ड, सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर. तो यहाँ नीचे से स्टार्ट होगा, ठीक है, नीचे से स्टार्ट करके इस तरह से ग्रेजुअली डिक्रीज कर देंगे. सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये वाली है.
सो यू कैन नोट डाउन द सोल्यूशन। अगर कहीं पे भी आपको डाउट लगता है, कहीं पे भी आपको लगता है कि हमें समझ नहीं आया ये क्वेश्चन, देन यू कैन ड्रॉप अ मैसेज ऑन माई नंबर और यू कैन कमेंट ऑन दिस वीडियो। आप इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे फ़ोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। कॉल को मैं प्रेफर नहीं करता, ठीक है। सो दिस यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट वन। Now we are moving to the next question. Please take the screenshot. Okay, dark dress. Now see this one. A uniform wire ABCD with each side of length L. So this is length uniform wire. This is length L. This is length L. I think this is also length L. This is also length L. This is also length L. So every length is L. But wait for 1 minute. Just wait for 1 minute. Okay, so this is the question and I was just checking the colors. एक बार कलर्स में मार्कर्स वगैरह चेक कर रहा था मैं, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन नाउ। A wire ABCDEF with each side length L is bent into the figure shown and carrying a current I is placed in a uniform magnetic field parallel to positive y-axis. So where is the y-axis? This is my y-axis. What is the magnitude and direction of force experienced by the wire? So students, in the today's class we have seen when a current carrying conductor is placed in the magnetic field, then it will experience the force, and the force is given by this force. That force, the force experienced by the conductor is given by force is equal to IL क्रॉस B. सो I इंटू एल वैक्टर, आई एल वैक्टर हम कंबाइन ले लेते हैं, आई एल इंटू बी, आई एल इंटू बी. So this is IL cross B. So this is given by B इंटू I इंटू L. चलिए यहाँ तक तो हमें मिल गया BIL साइन थीटा. सो दिस इज द मैग्नीट्यूड BIL साइन थीटा. सो दिस इज द मैग्नीट्यूड फॉर द फोर्स. सो वी विल सी इन दिस क्वेश्चन कि इस क्वेश्चन में आंसर क्या है. 4 ऑप्शंस आर देयर. सो वी हैव टू फाइंड. एक बार चेक करें क्वेश्चन में क्या है. सो नाउ फर्स्टली सी दिस वन पोर्शन AB. तो जल्दी से बच्चे एक बार चलें फिगर के ऊपर. काइंडली गो टू दिस फिगर, क्लिक ऑन, सी दिस फिगर केयरफुली. दिस इज माई कंडक्टर AB and current is in which direction? Current is in current is in positive y-axis. And here you can see magnetic field is also in the, magnetic field is in which direction? Magnetic field is also in the positive y-axis. Here you can see magnetic field B is parallel to the positive y-axis. So parallel means magnetic field is also in this y डायरेक्शन. मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है. नाउ सी फोर्स ऑन AB पोर्शन कितनी हो जाएगी? IDL. ओके, DL की जगह IDL लिख लो, ठीक है. या IL B साइन जीरो, बिकॉज एंगल बिटवीन IL वेक्टर एंड B वेक्टर इज 0. तो बच्चे एंगल देखो साइन, ये दिस इज IL वेक्टर. वेट करना बच्चे, वेट. सो दिस इज IL वेक्टर एंड दिस इज माई B वेक्टर. सो मैग्नेटिक फील्ड और IL वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? 0. दैट मीन्स फोर्स इज इक्वल टू साइन 0 इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स दिस साइड AB, इस साइड AB पे कितनी फोर्स लगेगी? इस पे लगेगी 0 फोर्स. आई एम राइटिंग हेयर इट एज 0. मैं यहाँ पे 0 लिख रहा हूँ.
In the same way, this EF portion is having the current in this direction and my magnetic field is in this direction. मेरा magnetic field किस direction में है? In this direction. So angle between B and IL vector for the portion EF is, इस केस में बच्चे कितना एंगल हो गया? एंगल इज 180 डिग्री. These two vectors are parallel, anti-parallel, sorry. IL vector is parallel to now B. So on portion FE एंगल कितना हो जाएगा बच्चे? BIL sin 180 डिग्री. Sin 180 is also 0, so that means EF portion will also experience 0 force. तो मैं यहाँ पे भी बच्चे 0 लिख रहा हूँ. This is 0. So now see this portion CB. Current is in this direction, IL vector. Magnetic field is in this is IL vector. चलो मैं अच्छे से बनाता हूँ. This is IL vector and चलो थोड़ा नीचे लेके चलते हैं इसको ना. It will be more clear अगर मैं थोड़ा नीचे लेके जाऊँ. So this is IL vector. This is IL vector and this is my B vector. B vector किस तरफ था बच्चे? B vector was towards right. B vector इस तरफ था. So if I will cross IL, देखो मैं IL को IL क्रॉस B करूँ. If I will cross IL क्रॉस B, then my force will be, मैं IL को B के साथ क्रॉस करूँ then मेरी फोर्स किस तरफ आएगी बच्चे? My force will be towards this direction. मेरी फोर्स इस तरफ आ जाएगी. Means इस तरफ along x axis. My force will be along, force on BC side is along x axis. ठीक है, along x axis. If I will, यहाँ पे देखो अब, now this vector is ideal, this vector is IL, this vector is IL and magnetic field is this one. Magnetic field is this one. ये magnetic field है. So this is IL. अगर मैं इस साइड की क्रॉस करूँगा, if I will cross IL क्रॉस B DF, तो ये this direction will be, इसकी डायरेक्शन बच्ची आ जाएगी इन द नेगेटिव एक्स एक्सिस. सो मेरे पास ध्यान से देखना यहाँ से, इट विल बी, इफ़ आई विल क्लोज माई फिंगर्स इन IL क्रॉस B, अगर मैं IL क्रॉस B करूँगा देन माई मैग्नेटिक फील्ड फोर्स डायरेक्शन विल बी माइनस टूवर्ड्स माइनस एक्स एक्सिस. दिस इज टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस. सो दीज फोर्सेस, फोर्स ऑन BC conductor and force on DF conductor, these are equal in the magnitude. इक्वली होंगी ऑब्वियसली क्योंकि लेंथ भी सेम है, करंट भी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है. सो दीज टू आर इक्वल इन द मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन द डायरेक्शन. तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगी? दीज टू विल कैंसल ईच अदर. तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी. बच्चे थोड़ा फोकस करके देखोगे देन आपको अच्छे से समझ आएगा. पहले तो ये समझना है कि अभी मैं सारा इरेज कर रहा हूँ. ठीक है, ए बी पोर्शन के ऊपर फोर्स 0 क्योंकि एंगल 0 था. EF में फोर्स 0 बिकॉज एंगल कितना था? 180. CB पे फोर्स लगी इन विच डायरेक्शन? एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स. DE पे फोर्स लगी लेकिन वो किस डायरेक्शन में लगी? टूवर्ड्स नेगेटिव. ये दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं बट दीज टू आर ऑपोजिट इन द डायरेक्शन. तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगी? कैंसल. वी आर लेफ्ट विद वन पोर्शन. हमारे पास सिर्फ DC पोर्शन बचा. ठीक है, DC पोर्शन बचा है और इसमें करंट किस डायरेक्शन में है? करंट इज इन दिस डायरेक्शन. तो ये मेरा IL वेक्टर हो गया. दिस इज माय IL वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड देखो बच्चे किस डायरेक्शन में बचा. अब मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन. सो मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन है ना, पॉजिटिव y एक्सिस. चलो थोड़ा ऊपर बना लेते हैं. सो दिस इज माई, ठीक, दिस इज माई मैग्नेटिक फील्ड. ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है. सो इफ़ आई विल क्रॉस माई फिंगर्स फ्रॉम IL वेक्टर, ये मेरा IL वेक्टर था.
इफ़ आई विल क्रॉस माई फिंगर्स फ्रॉम आई एल वेक्टर टूवर्ड्स द बी वेक्टर, अगर मैं फिंगर्स को क्रॉस करूँगा देन यू कैन ईजिली ऑब्जर्व दैट फोर्स विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन। सो फोर्स ऊपर की तरफ आएगी। सो दैट मीन्स इस पे देखो, अब पूरी लूप जो थी, दिस वाज लूप, इस तरह की लूप थी, इस पे फोर्स नहीं इस पे लगी, लेकिन उसने कैंसिल कर दिया दूसरे को। तो इसमें सारा हमने कंक्लूड करके निकाला कि ओनली डीसी पोर्शन विल एक्सपीरियंस द फोर्स। डीसी पोर्शन एक्सपीरियंस तो फोर्स राइट साइड और लेफ्ट साइड वाले भी करेंगे, लाइक सी बी और डी ई, बट वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सो नेट फोर्स ऑन द लूप विल बी दिस वन। तो डीसी पोर्शन वाली ही फोर्स जो है वो नेट फोर्स बचेगी, एंड द डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, हाँ एंगल कितना हो गया दोनों के बीच में, 90 डिग्री, आई एल वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में। आई एल वेक्टर वाज इन दिस डायरेक्शन, आई एल वेक्टर किस तरफ था, इस तरफ, एंड मैग्नेटिक फील्ड वाज डायरेक्शन वाज दिस वन। तो इन दोनों के बीच में एंगल भी हमारा 90 डिग्री का हो गया था। तो हमारे पास बी आई एल साइन थीटा आ गया था आंसर, साइन 90। सो आई थिंक दिस इज़ द राइट आंसर, बी आई एल अलॉन्ग द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। कोई इलेक्ट्रॉन तो नहीं था, पॉजिटिव चार्ज ही था ना, हाँ कंडक्टर था। तो बी आई एल अलॉन्ग पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, दिस इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस फोर्थ क्वेश्चन। सो बच्चे व्हाट वी हैव सीन अप टू दिस पॉइंट, हमने 3 क्वेश्चन किए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के। देन वी हैव सीन अ 1 क्वेश्चन विच इज़ कैरिंग करंट कैरिंग कॉयल वगैरह इसमें है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दी हुई है। सो इसमें हमने देखा है कि हमारा आंसर क्या आता है। सो दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। So this one is the another question, very important one, एक important question. The monoenergetic beam of electrons moving along positive y-axis enters the region uniform magnetic field. If a beam goes straight undeflected, then the E, B are respectively. तो बच्चे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, दिस इज माई एक्स एक्सिस, ठीक है, इसको ले लेते हैं वाई एक्सिस, एंड दिस इज माई जेड एक्सिस, इसको जेड एक्सिस ले लेते हैं, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। एंड इन द क्वेश्चन दे आर सेइंग दैट इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन पॉजिटिव वाई एक्सिस। सो दिस इज द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। चलो ठीक है, दिस इज द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। फर्स्ट ऑप्शन बी की बात करी है, फील्ड बी एंड ई, तो बच्चे इसके बारे में बात करेंगे। देखो मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स होनी चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बट दे आर ओपोजिट, दे विल बी ओपोजिट इन द डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फोर्स जो है दैट इज क्यू वी बी साइन थीटा। मैग्नेटिक फोर्स अगर इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाती है देन दोनों फोर्सेज एक दूसरे को क्या कर देंगी, कैंसिल आउट। सो दोनों फोर्सेज एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, लेकिन ये क्वेश्चन बाय ऑप्शन करना पड़ेगा हमें, बिकॉज इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सो वेलोसिटी हमें पता है, हमने कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लिया। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। इसमें बोला है मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड इज इन माइनस वाई डायरेक्शन, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है ना, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन पे है। बच्चे देखो अगर इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना हो गया, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के एंगल के बीच में एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। और अगर 180 डिग्री एंगल हो जाता है देन मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 180 डिग्री। तो फर्स्ट केस में देखो मैग्नेटिक फोर्स किसके इक्वल हो गई, आई एम राइटिंग एफ एम फॉर मैग्नेटिक फोर्स, देन मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू कितनी हो गई, क्यू वी बी। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। क्यू वी बी साइन 180, ठीक है, साइन 180 ले लिया। अब साइन 180 देखो, साइन 180 इज इक्वल टू 0। 180 क्यों लिया, बिकॉज उसने बोला है वाई माइनस वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड वाला फॉर्मूला लगाया भाई, 180 डिग्री का एंगल आया तो 180 डिग्री पुट कर दिया,
लेकिन अगर ये फोर्स ही जीरो आ गई, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स जीरो आ गई तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट करेगी। तो चार्ज पार्टिकल के ऊपर अनडिफ्लेक्टेड तो वो जा ही नहीं पाएगा, डिफ्लेक्शन तो हो जाएगी ना उसमें, अगर एक फोर्स लगेगी दूसरी जीरो होगी। सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ऑप्शन नंबर ए तो पॉसिबल नहीं है। चलो इसको रेज कर दें, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट के ए ऑप्शन नॉट पॉसिबल, वाई। ओके, नाउ सी, दोबारा से ड्रॉ करते हैं। दिस इज़ द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल जो थे इलेक्ट्रॉन्स, उनका मोशन इस डायरेक्शन में है वाई, दिस इज़ जेड, एंड ये हम परमानेंटली लिख लेते हैं वैसे, चलो कोई बात नहीं, दिस इज़ एक्स वाई जेड। सो नाउ सेकंड केस प्लस जेड एक्सिस, तो मैग्नेटिक फील्ड को बोला है प्लस जेड में। चलो चेक करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में प्लस जेड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड प्लस जेड में, और प्लस एक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरफ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चे, जल्दी से चेक करते हैं। देखो इफ़ आई विल क्रॉस, अगर मैं, ये मेरा चार्ज है क्यू, क्यू वैसे मैं यहाँ पे नहीं लूँगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, तो मैं यहाँ पे माइनस ई ले रहा हूँ, ठीक है, दिस इज़ माई माइनस ई। तो हमने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू एफ ई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू ई। तो इसमें माइनस साइन क्या इंडिकेट करता था, माइनस साइन वाज इंडिकेटिंग दैट द फोर्स विल बी ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दैट मीन्स अगर यहाँ पे फोर्स लगेगी इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ये इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करेगा तो ये इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, दिस विल बी द डायरेक्शन, तो इस तरफ मूव कर जाएगा। नाउ सी, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक, ये जो चार्ज पार्टिकल है वो किस डायरेक्शन में जाएगा, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में था। अब यहाँ पे आइडियल क्रॉस आर करो, इफ़ यू विल क्रॉस योर फिंगर्स फ्रॉम आइडियल, सॉरी क्यू वी क्रॉस बी करो, क्यू वी क्रॉस बी करो। सो आपकी जो मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगी दैट इज़ इक्वल टू, बच्चे अगर ये नॉर्मल होता, अगर ये नॉर्मल केस होता फिर तो हम माइनस, हम क्यू वी क्रॉस बी ले लेते, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन या कोई भी नेगेटिव पार्टिकल होता है उसकी डायरेक्शन वी क्रॉस बी के ओपोजिट आती है, ठीक है, फोर्स की। सो यहाँ पे देखो, इस फिगर में देखो, इफ़ यू विल सी इट क्लियरली, अगर आप यहाँ पे देखोगे वी क्रॉस बी, तो आपका वेक्टर आएगा टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, फोर्स आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ आनी चाहिए। लेकिन बच्चे ये नेगेटिव पार्टिकल है, तो नेगेटिव पार्टिकल होने की वजह से इसके फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस नहीं लगेगी, इसमें टूवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस लगेगी। तो अब देखो दो फोर्सेस हो गई, दिस इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड दिस इज़ माई मैग्नेटिक फोर्स, ये मेरी मैग्नेटिक फोर्स हो गई, ठीक है। सो दो फोर्सेस हो गई, दैट मीन्स अब दोनों है भी लेफ्ट साइड पे, तो दैट मीन्स इस केस में भी पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड नहीं होगा, इस केस में भी डिफ्लेक्ट हो गया क्योंकि दोनों फोर्सेस एक डायरेक्शन में लग गई। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, ये भी स्क्रीनशॉट ले लो, क्यों नहीं पॉसिबल, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को दोबारा से ट्राई करते हैं, थर्ड ऑप्शन। हम क्या करते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं इन द पॉजिटिव जेड एक्सिस, दिस इज़ माई एक्स, दिस इज़ माई वाई एंड दिस इज़ माई जेड। चलो एक्स वाई जेड दोबारा हमें लेने पड़े, थोड़ा लेंथी हो गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं, एक बार समझ आ जाएगा तो देन इट विल बी मोर क्लियर, एक बार समझ आ जाए। सो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, अच्छा पार्टिकल का मोशन किस डायरेक्शन में था, वाई, दिस इज़ द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन हो गया, एंड मोशन ऑफ पार्टिकल्स ले लें, पार्टिकल का मोशन किस डायरेक्शन में है, सॉरी पहले हम वी ले लिया हमने, और ये हमारा हो गया मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज लॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो बच्चे देखो इलेक्ट्रॉन्स थे, अगर मैं यहाँ से क्यू वी क्रॉस बी करूँ, अगर ये नॉर्मल पार्टिकल होता देन इट विल एक्सपीरियंस फोर्स इन विच डायरेक्शन, अगर ये नॉर्मल पार्टिकल होता वी क्रॉस बी, है ना, वी क्रॉस बी डायरेक्शन आती, एंड वी क्रॉस बी करने से मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स की डायरेक्शन इनवर्ड आ जाती, आई थिंक वी क्रॉस बी, हाँ इनवर्ड आ जाती, बट दिस इज इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है। सो नेगेटिव चार्ज के केस में क्या होता है, फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, नेगेटिव चार्ज के केस में फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी एंड इट विल बी टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन, ये
पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। व्हेन द इलेक्ट्रॉन विल एंटर इन मैग्नेटिक फील्ड, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, एक्स डायरेक्शन में, देन आपका जो ये होगा ना मैग्नेटिक फील्ड, इट विल बी टूवर्ड द फोर्स, जो मैग्नेटिक फोर्स होगी, द फोर्स दैट इज एक्सपीरियंस ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स होगी, तो ये दैट विल बी टूवर्ड्स पॉजिटिव जेड एक्सिस, तो ये पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ आएगी। अब देखो दूसरी चीज़ क्या बोली उसने कि मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग, चलो पहले तो ये लिख लें, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। देन ही इज सेइंग कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज इन दिस डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जेड डायरेक्शन में है। अब बच्चे देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जेड डायरेक्शन में है और ये पार्टिकल है, तो इन पे फोर्स लगेगी माइनस ई इंटू ई, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के ओपोजिट फोर्स लगेगी, है ना। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसके ऊपर ओपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। दैट मीन्स ओपोजिट डायरेक्शन कौन सी है, देखो नाउ, ओपोजिट डायरेक्शन इज दिस वन, है ना। ई के ओपोजिट कौन सी डायरेक्शन है, दिस वन। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स बीम ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये फोर्स हो गई। सो नाउ देखो डायरेक्शंस को थोड़ा मैं हाईलाइट करूँ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स टूवर्ड्स माइनस जेड एक्सिस एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड टूवर्ड्स पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो एक फोर्स जो है वो पॉजिटिव जेड एक्सिस में है, वन फोर्स इज टूवर्ड्स द नेगेटिव जेड एक्सिस। तो इसका आंसर बन जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर फॉर द फिफ्थ क्वेश्चन। थोड़ी कन्फ्यूज़न हुई होगी, अगर एक बार दोबारा रिकैप करके देखना, अगर प्रॉब्लम आती है देन यू कैन ड्रॉप अ मैसेज टू मी, ठीक है। मैसेज ड्रॉप कर दो, केसेस लेके ही पता लगेगा, हिट एंड ट्रायल नहीं हो पाएगा इस क्वेश्चन में, कोई शॉर्टकट भी नहीं यूज़ हो पाएगा। सो वी हैव टू सॉल्व फॉर ईच केस, हमें हर केस के लिए सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि किस केस के लिए किस तरह से क्या होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 5। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, ठीक है। सो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। इसमें नेगेटिव चार्ज पार्टिकल थे, इसलिए थोड़ी कन्फ्यूजन आपको हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट इज द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट ओरिजिन ड्यू टू 4 इनफाइनाइट लेंथ वायर, इफ ईच वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड बी एट द ओरिजिन, ठीक है। सो दिस इज द अनदर क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को कल मैंने पुट भी किया था। दिस इज द चॉकलेट क्वेश्चन, चॉकलेट के लिए ये क्वेश्चन था, ठीक है। सो कुछ बच्चों ने आंसर दिया था, अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं दिया कोई बात नहीं, दे कैन लर्न फ्रॉम द वीडियो, वो वीडियो से सीखें। सो करंट कैरिंग कंडक्टर, दिस इज द करंट कैरिंग कंडक्टर एंड करंट इज इन विच डायरेक्शन, करंट इज इन दिस डायरेक्शन। करंट किस डायरेक्शन में बच्चे, रेज दिस वन प्लीज, ओके। सो मार्कर, ओके। सो करंट इज इन द आउटवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम हेयर, ठीक है। एट दिस पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड एट ओरिजिन, ओरिजिन है बच्चे जहाँ पे एक्स भी 0 है और वाई भी 0 है। सो दिस इज माई वेक्टर आर, दिस इज माई आइडियल वेक्टर, आइडियल वेक्टर ये है, एंड आर वेक्टर इज दिस वन। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द फोर्थ कंडक्टर एट दिस पॉइंट, बच्चे आइडियल क्रॉस आर करो, इफ़ यू विल क्रॉस आइडियल क्रॉस आर, अगर आप आइडियल क्रॉस आर करोगे then you can observe due to fourth conductor the magnetic field at the center point is in the upward direction. So due to fourth conductor the magnetic field at this point is, तो ठीक है, magnetic field किस डायरेक्शन में आया, due to fourth conductor magnetic field is in upward direction. अब now see this one, now see this one, due to this conductor 2, इसके साथ 4 लिख लें साथ में, due to this is 4, this is due to 4 and now see this one 2 के लिए, 2 का मैग्नेटिक फील्ड चेक करना है। करंट इज इनवर्ड, आइडियल वेक्टर इज इनवर्ड एंड आर वेक्टर इज दिस वन, तो आइडियल क्रॉस आर। चलो आर वेक्टर के लिए कलर चेंज करते हैं, लेट्स चेंज द कलर फॉर आर वेक्टर, ओके। दिस इज माई आर वेक्टर,
सो इफ़ यू विल क्रॉस यूर फिंगर्स, अगर आप आइडियल क्रॉस आर करोगे, सो एट द ओरिजिन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर 2 इज ऑल्सो अपवर्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आइडियल क्रॉस आर करके देखो, दिस इज आइडियल, दिस इज आइडियल, सो दिस इज माई वेक्टर आर। बच्चे अगर आप आइडियल क्रॉस आर करोगे देन यूर मैग्नेटिक फील्ड विल बी अपवर्ड। सो नाउ आई एम ड्राइंग द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर नंबर 2। ड्यू टू कंडक्टर नंबर 2 मैग्नेटिक फील्ड इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। दोनों का मैग्नीट्यूड b, इसका भी मैग्नीट्यूड b। देन व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना है, कंडक्टर नंबर 1 एंड 3 आर लेफ्ट। सो कंडक्टर नंबर 1 मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड, सॉरी करंट इज आउटवर्ड, आइडियल वेक्टर इज आउटवर्ड एंड दिस इज माई आर वेक्टर। तो क्लोज करो, क्लोज यूर फिंगर्स फ्रॉम आइडियल वेक्टर टूवर्ड्स आर वेक्टर। You can observe that magnetic field due to conductor number 1 will be towards right direction and इसका भी मैग्नीट्यूड b। ठीक है, सो ऑब्जर्व, दिस इज जस्ट अबाउट ऑब्जर्वेशन, थोड़ा सा 3D डायग्राम यहाँ पे नहीं बन पाएगा। सो आइडियल क्रॉस आर करो, दिस इज आइडियल वेक्टर एंड दिस इज माई आर वेक्टर। इफ यू विल क्रॉस द आइडियल वेक्टर विद आर वेक्टर, यू कैन डेफिनेटली ऑब्जर्व magnetic field due to conductor number 1 will be towards the right. In the same way, you can observe this is the magnetic ideal vector. Wait, erase. This is my ideal vector, ये ideal vector है, and this is my R vector, ये R vector है। So if I will cross ideal cross R करेंगे, then my fingers will my thumb will give the direction of magnetic field. So ideal cross R, this is my R vector. तो यहाँ पे उतने अच्छे से नहीं लिख पा रहे, बट आइडियल, इफ़ आई विल क्रॉस आइडियल, यहाँ पे मेरा R है एट द ओरिजिन। सो आइडियल क्रॉस R, देन द डायरेक्शन ड्यू टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू थर्ड कंडक्टर विल बी टूवर्ड्स राइट। तो ये दो वेक्टर्स देखो, दो वेक्टर्स टूवर्ड्स राइट हैं, ड्यू टू टू वेक्टर्स टूवर्ड्स राइट। सो दिस इज माई रिजल्टेंट, यहाँ पे एक रिजल्टेंट बना लें। वेट करना बच्चे, वेट फॉर 1 मिनट। सो दिस इज माई रिजल्टेंट, इस तरफ एक रिजल्टेंट आ जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, हुज मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू 2b, बिकॉज b प्लस b इज 2b। इस इन द सेम वे दिस इज द रिजल्टेंट, इस तरफ भी एक रिजल्टेंट आ जाएगा विच इज हैविंग द मैग्नीट्यूड b प्लस b इज 2b, इसका मैग्नीट्यूड भी 2b हो जाएगा। अब 2b वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो पैरेललोग्राम लॉ यूज़ करो, पैरेललोग्राम लॉ यूज़ करो, उसका स्टेटमेंट यूज़ करो एंड यू विल डेफिनेटली गेट, आपके पास जो रिजल्टेंट आएगा दैट इज़ इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ आइदर a और b। तो √2 टाइम्स आ जाएगा। सो 2√2b विल बी द आंसर फॉर दिस 6th क्वेश्चन। इसका आंसर सी ऑप्शन आएगा। हाँ, अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था, ज़्यादा ईजी भी नहीं था, थोड़ा सा ट्राई कर सकते थे, तो आई थिंक ईजिली कर सकते थे। तो 2√2b विल बी द आंसर फॉर द 6th क्वेश्चन एंड नाउ वी आर लेफ्ट विद द 7th क्वेश्चन। हमारे पास एक ही क्वेश्चन बचा है, जल्दी से ख़त्म करते हैं। वीडियो भी ऑलमोस्ट 1 आवर कंप्लीट हो चुका है, तो इतनी ही वीडियो ऑलमोस्ट हम बनाते हैं, इससे ज़्यादा क्या बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज़ द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। ये अभी हमने किया नहीं है, बट एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं यहाँ पे। सो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट किसी भी शेप में हो सकती है। सपोज हमारे पास ट्रायंगल है, उसका बोल दिया कि मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट बताओ। एक स्क्वायर है, उसका बोल दिया, तो होगा क्या इन दिस केस, करंट विल बी गिवन। करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, या करंट क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है। सो मैग्नेटिक मूवमेंट विल बी गिवन बाय, मैग्नेटिक मूवमेंट इज इक्वल टू I इंटू एरिया, I इंटू एरिया। तो I के साथ आप एरिया को मल्टीप्लाई कर दोगे, करंट के साथ एरिया मल्टीप्लाई कर दोगे, देन यू विल डेफिनेटली गेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। वायर ऑफ लेंथ L मीटर इज कैरिंग अ करंट I एंड इट इज़ बेंट इनटू अ फॉर्म ऑफ सर्कल। तो इतना ईजी नहीं है कि आप सीधा डायरेक्टली जाकर एरिया की वैल्यू पुट कर दो, है ना, πr²। सो L इज इक्वल टू, L को बेंट किया है, L इज बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ सर्कल, दैट मीन्स दिस इज L। सो पैरामीटर ऑफ सर्कल is equal to 2πr and this is equal to L।
पैरामीटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर, दिस इज इक्वल टू एल, सो आर इज इक्वल टू रेडियस इज इक्वल टू एल बाई 2 पाई। यहाँ तक क्लियर कर लो बच्चे पहले। एल इज इक्वल आर इज इक्वल टू एल बाई 2 पाई, दिस इज द रेडियस ऑफ दिस लूप। ये जो बेंट करके लूप बनाई है जिसका एल 2 था, रेडियस था, एल पूरी लेंथ थी, एंड इसका रेडियस आएगा, रेडियस इज इक्वल टू एल बाई 2 पाई। नाउ आई करंट इज फ्लोइंग एंड पाई आर स्क्वेयर इज द एरिया, पाई इंटू आर स्क्वेयर, एंड आर की वैल्यू पुट कर दें। सो आई इंटू पाई, आई के साथ पाई मल्टीप्लाई करो, साथ में आर की वैल्यू पुट करो, आर वैल्यू इज एल बाई, आर की वैल्यू एल बाई 2 पाई स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर भी करना पड़ेगा। सो दिस इज द मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है बच्चे, इसके आपको याद करना होगा, अभी आपके हमने नहीं कवर की क्लास में। इट इज़ इक्वल टू आई इंटू पाई एल स्क्वेयर बाय 4 पाई स्क्वेयर। ठीक है, सो एल स्क्वेयर बाय 4 पाई स्क्वेयर, एंड 1 पाई विल कैंसिल आउट, एक पाई कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, सो यू आर लेफ्ट विद आई एल स्क्वेयर, आई इंटू एल स्क्वेयर बाय 4 पाई। सो दिस इज द मैग्नेटिक मूवमेंट। सो आई एल स्क्वेयर बाय 4 पाई, दिस विल बी द मैग्नेटिक मूवमेंट। ये मैग्नेटिक मूवमेंट आपकी आएगी फॉर द 7th क्वेश्चन, एंड दिस इज क्वेश्चन आई एम रिपीटिंग, दिस क्वेश्चन वी हैव नॉट डन इन द क्लास, अभी तक हमने क्लास में नहीं किया है। सो इसके बारे में भी बात करेंगे। बेसिकली मैग्नेटिक मूवमेंट इज इक्वल टू, होती क्या है मैग्नेटिक मूवमेंट, करंट इनटू एरिया ऑफ द फिगर। तो एरिया कोई भी फिगर हो सकती है, स्क्वायर हो सकती है, ट्रायंगल हो सकती है, या सर्कल हो सकता है। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट इन द एग्जामिनेशन। छोटे मोटे एग्जामिनेशन जो होते हैं उनमें मिल जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, सीबीएसई भी पूछ सकता है। सो इफ़ यू फील दैट दिस वीडियो इज़ यूजफुल टू यू, देन यू कैन लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। अगर आपको यूजेबल लगे वीडियो का तो ज़रूर शेयर और लाइक ज़रूर करें। एंड वी विल कंटिन्यू विद मैग्नेटिज्म नेक्स्ट वीडियो में। सोलिनॉइड, हाँ सोलिनॉइड टॉपिक इज़ पेंडिंग, एंड एक बार सोलिनॉइड थोड़ा सा गो थ्रू हो जाएंगे, देन हम मैग्नेटिज्म कंप्लीट करके विद इन 2 to 3 लेक्चर्स हम मैग्नेटिक फील्ड को ख़त्म कर देंगे। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।